हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतीक्षा फ्रॉम कैड सेंटर। तो अब तक के वीडियो आपने सब वीडियो देखे होंगे, तो आपको पता चला होगा कि कंपनी में कौन सी सॉफ्टवेयर की नीड है या फिर कंपनी में कौन सी वैकेंसीज आती है। तो ये सब सेट स्टडी आपने अब तक के वीडियो देख के सीखे होंगे, ठीक है। अगर आपने आज तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी वो सब वीडियो देखो। मैंने सारे वीडियोस की जो हाइपर लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की है, तो वहाँ पे जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हो। ओके, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रोडक्ट आर्किटेक्ट को सुनते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रोडक्ट आर्किटेक्ट क्या कह रहे हैं। Hello friends, welcome to the section of job study. This is Kaustubh Panse, product architect, design your own university. Let's first understand what is this section all about. Guys, when we conducted the survey for student, about 500 people have filled a survey. The major pain area of student that in which we need to support them according to the survey is interview preparation. So for that reason, to prepare you for the interview, we have created this section. Yeah, so let me allow me to explain it one by one. Now, why you have to see this video? Why you have to take notes on this? See, the first reason is why you have to do it is you have to study the job market, because in a market, in a job kind of market, there are a lot of companies. So we want you to make very rational choices. So first study job market. Then once you understand market, then set your goal that I want to work in this profile. I want to set vision. I want to become like this person. I want to achieve this much salary. And then once you have set a goal, then you go for interview preparation. Begin your interview preparation, right? Now, what is the whole agenda? See, my entire team is working with you. We are conducting interviews and we have found out that students are not even aware of the name of the company. So imagine you want to work in a multinational company, but you don't know their names. So forget about their job profile, their clients, projects, everything. So here, in every video, we will improve your knowledge just by 1%. We will improve your information by just 1%. Now you do it for 6 months. So from this knowledge, you will have the entire market study done. So you can make very good choices. Second reason is how do you prepare yourself for an interview? Because most of you are fearful about the interviews for a simple reason, you don't know what would be asked in that interview. So my recommendation is, whenever you are seeing this video, come with a diary, prepare notes. Yeah, you make a special job study diary. And finally, you explore the employer's website. That is very, very important. Because I have to prepare this video in a short while, I cannot explore it on my own. So you take your own time and explore it. The third point is what you have to do when you do this. It's a very simple process. First thing is you analyze your skills. I will be telling you what kind of skill requirement is there in the market. There are 3 kinds of skill requirement for any job profile. One is software skills, other is design skills, and third is soft skills. Yeah. So every company, depending upon, will have variable requirement in the 3 areas. So all these 3 areas, now analyze your skills. Yeah, how much designing skills you have, what kind of software skills you have, and what kind of soft skills you have. Yeah, and once you do this, just become aware of 2 things. What are these 2 things? These 2 things are, whenever you were seeing that video, were you having a sense of self-belief? Were you feeling confident in that area? Just be aware of that and note down those points. Now, you also see, fear is a very good indicator. Fear only means that you are not prepared in that area. So if they are asking, let's say for example this video, if this is asking you to have excellent spoken English skills and you feel fearful, अगर आपको डर लगा है तो इसका मतलब आप वहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो ये जो फियर है उसके भी पॉइंट आप नोट डाउन करो। यहाँ पे टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये इसको मेंशन करो। अभी क्या करना है कि जिस पॉइंट पे आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है उसको वैसे ही मत छोड़ो, वेरीफाई करो, देखो उस पर कोई असाइनमेंट सॉल्व करके, कैड सेंटर के ट्रेनर से जाके मिलो, पूछो कि सर ये मेरे स्किल्स बराबर है क्या, अपने लाइफ के ये पॉइंट देखो, है ना। अभी जहाँ पे आपको फियर महसूस हो रहा है, सिंपली आपको जाना है यूनिवर्सिटी में लॉगिन कीजिए। मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं, उस सेक्शन में जाइए और खुद उसका प्रिपेयर कीजिए। Yeah, so that is how you have to go about the business. Okay, अब आपने सुना होगा प्रोडक्ट आर्किटेक्ट ने क्या कहा, हमारे कौस्तुभ सर ने क्या कहा। तो इस वीडियो को देखने का मोटिव तो आपको पता चला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। ओके, सो आज की वैकेंसी कौन सी है?
तो आज की जॉब ओपनिंग जो है वो रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर, मतलब स्ट्रक्चरल ड्राफ्ट्समैन या स्ट्रक्चरल डिजाइनर, मतलब क्या कि जो स्ट्रक्चरल ड्राफ्ट्समैन या फिर स्ट्रक्चरल डिजाइनर, मतलब जो सिविल इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वैकेंसी क्या है कि सिविल इंजीनियर। अब सिविल इंजीनियर करते क्या है, उनका जॉब रोल क्या रहता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी पता करते हैं। तो इसका जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है यहाँ पे, मतलब क्या करते हैं वो लोग कि जनरेशन ऑफ स्ट्रक्चरल सिविल या फिर आरसीसी ड्राइंग्स फॉर मेन फ्रेम स्ट्रक्चर्स एंड हाई राइज कमर्शियल कॉन्क्रीट बिल्डिंग, then preparing schematic drawings as per architecture and structural requirement, then assisting architects and engineers of the project team in relation to the assigned work on the project, then studying and discussing a design project with the engineers and determining the detailed specifications of the model। मतलब क्या कि वो डिस्कस करते हुए उनके डिज़ाइन प्रोजेक्ट जो होगा उसके साथ डिस्कस करके आपको क्या करना पड़ता है, डिटेल स्पेसिफिकेशन, मॉडल का एक डिटेल स्पेसिफिकेशन ड्रॉ करना पड़ता है। प्लस आपके आर्किटेक्ट के साथ या फिर इंजीनियर्स के साथ आपकी जो टीम होगी उसके साथ भी आपको रिलेशन रखना पड़ता है, उनके हिसाब से आपको आपका वर्क असाइन करना पड़ता है, ठीक है। या और क्या है कि स्कीमेटिक ड्राइंग्स आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है एज पर आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, देन जनरेशन ऑफ स्ट्रक्चरल सिविल आरसीसी ड्राइंग्स फॉर मेन फ्रेम स्ट्रक्चर्स एंड हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग। मतलब क्या कि आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स रहती है वो आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो ये सब जो है वो किस सॉफ्टवेयर्स में करेंगे आप, कौन से सॉफ्टवेयर्स की नीड है उन्हें, या फिर ये वैकेंसी कौन सी कंपनी की तरफ से आई, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम पता करते हैं। तो ये वैकेंसी कौन सी कंपनी की तरफ से आई है, तो कंपनी है टेक्नोक्रेसी कंसल्टेंट्स। अब टेक्नोक्रेसी कंसल्टेंट क्या है उनके बारे में थोड़ा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उनकी जो वेबसाइट की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कंपनी के बारे में, ओके। अब ये उनके सॉफ्टवेयर, उन्हें कौन से सॉफ्टवेयर की नीड है, तो मैंने इनका मेल का जो स्क्रीनशॉट है मैंने ऐड किया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ सकते हो कि उन्हें कौन से सॉफ्टवेयर, उन्हें क्या क्या चाहिए, कौन से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स चाहिए, कौन से पास आउट ईयर चाहिए, ये सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है उन्हें, स्ट्रक्चरल ड्राफ्ट्समैन या फिर सिविल इंजीनियर के लिए उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो स्ट्रक्चरल ड्राफ्ट्समैन के लिए उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मस्ट बी गुड नॉलेज इन ऑटोकैड, या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए क्या है, मस्ट बी गुड नॉलेज इन ऑटोकैड, ईटैप एंड स्टैडप्रो सॉफ्टवेयर। अब ऑटोकैड सॉफ्टवेयर क्या है, तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चरल ड्राफ्ट्समैन के लिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की नीड बोली है। मतलब पहले एक वीडियो में आपने देखा होगा कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर क्या है या फिर ड्राफ्ट्समैन क्या करते हैं। तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर क्या है कि वो एक डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप 2D ड्राइंग्स या और 3D ड्राइंग्स दोनों बना सकते हैं। 2D ड्राइंग्स मतलब क्या, आपके पास अगर कुछ प्लान होगा, एरिया होगा, तो उसके हिसाब से आप एक प्लान ड्रॉ कर सकते हो विद द प्रॉपर स्केल एंड प्रॉपर मेजरमेंट्स। ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हो। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की नीड है, ऑटोकैड, ईटैप एंड स्टैडप्रो। अब ऑटोकैड तो बेसिक सॉफ्टवेयर है ही, क्योंकि उसके ऊपर आप एक प्लान बना रहे हो आपका, उस प्लान के ऊपर आपको ईटैप और स्टैडप्रो सॉफ्टवेयर का यूज करके ईटैप और स्टैडप्रो सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी है। अब ईटैप सॉफ्टवेयर क्या है या फिर स्टैडप्रो सॉफ्टवेयर क्या है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स के सॉफ्टवेयर है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के सॉफ्टवेयर है। मतलब कितने बीम आपको आपके प्रोजेक्ट में कितने बीम होंगे या फिर कितने। अब ईटैप और स्टैडप्रो सॉफ्टवेयर क्या है, तो ईटैप और स्टैडप्रो सॉफ्टवेयर क्या है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में एक वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो देखते हैं ईटैप के ऊपर। ETABS. Our programs on ETABS teach you 3D object-based modeling and visualization tools, design capabilities for a wide range of materials, graphic displays, reports, and schematic drawings. The course covers all key features of ETABS such as modeling, concrete frame design and detailing, steel frame design and detailing, steel connection design, composite beam, dynamic analysis. We offer ETABS in certificate, diploma, professional, and master diploma courses. Enroll and learn how to do integrated analysis, design, and drafting of all building systems. अब ईटैप तो देख लिया आपने, स्टैडप्रो क्या रहता है, तो स्टैडप्रो सॉफ्टवेयर का भी एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं।
STARD Pro. Our programs on STARD Pro trains you in all aspects of model generation, property assignment, model loading and analysis, concrete and steel design, and post-processing. The course covers the key features of STARD Pro, such as finite element meshes, structural modeling, steel and concrete interactive design, slab design, material takeoff. We offer STARD Pro in certificate, diploma, professional, and master diploma courses. Enroll to learn how to design and analyze any type of structure, from buildings to bridges to utility structures. ठीक है, अब आपने देखा होगा ईटैब और स्टार्ड प्रो सॉफ्टवेयर का वीडियो देखा होगा, तो आपको पता चला होगा कि ईटैब और स्टार्ड प्रो सॉफ्टवेयर क्या है, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ऑटोकैड, स्टार्ड प्रो एंड ईटैब सॉफ्टवेयर। तो ये सब सॉफ्टवेयर की नीड है उन्हें। अब ये सारे सॉफ्टवेयर अगर आपको आते हैं तो सैलरी भी अच्छी होगी। तो उन्होंने सैलरी के बारे में बताया है कि सैलरी विल बी बेस्ड ऑन ऑटोकैड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। मतलब आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज कितना होगा या फिर उसके ऊपर आपको कितना एक्सपीरियंस होगा, उसके हिसाब से वो सैलरी देने वाले हैं आपको। अब कंपनी को क्या चाहिए, ऑटोकैड, ईटैब एंड स्टार्ड प्रो सॉफ्टवेयर। अगर ये सारे सॉफ्टवेयर आपको आते नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये सारे सॉफ्टवेयर हमने हमारे यूनिवर्सिटी पोर्टल में इसके वीडियोस ऐड किए। अब यूनिवर्सिटी पोर्टल है क्या, तो यूनिवर्सिटी पोर्टल जो है वो है डिज़ाइन योर ओन यूनिवर्सिटी। अब डिज़ाइन योर ओन यूनिवर्सिटी मतलब क्या, ये एक यूनिवर्सिटी है जिसमें सारे सिविल, मैकेनिक, इंटीरियर और आर्किटेक्चर के जो सॉफ्टवेयर है वो सारे सॉफ्टवेयर जो है वो यूनिवर्सिटी में ऐड किए। अगर ये सारे सॉफ्टवेयर आपको आते नहीं है या फिर ऑटोकैड, ईटैब और स्टार्ड प्रो सॉफ्टवेयर आपको आता नहीं है तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करते हो तो ये सारे सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। अब ऑटोकैड सॉफ्टवेयर कहाँ से सीखोगे, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर से मैकेनिकल, इंटीरियर, आर्किटेक्चर के भी सॉफ्टवेयर है वहाँ पे। तो अगर आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे डिटेल में दिया है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर कहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर कहाँ पे पढ़ सकते हो, तो स्पेस डिज़ाइन में जाओ, उसके अंदर मॉडलिंग फंडामेंटल्स है, मॉडलिंग फंडामेंटल्स में जाके ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑटोकैड के बारे में। ईटैब और स्टार्ड प्रो सॉफ्टवेयर भी आप सीख सकते हो। ठीक है, अब कंपनी को चाहिए ऑटोकैड, स्टार्ड प्रो एंड ईटैब का नॉलेज। लेकिन सिर्फ इतना नॉलेज हो सफिशिएंट है क्या इंटरव्यू के लिए या फिर किसी भी कंपनी में प्लेस होने के लिए, तो नहीं। आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर का नॉलेज होकर कुछ नहीं होगा। आपके पास वो प्रिपरेशन स्किल्स होने चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, आपके पास सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। अब ये सारे स्किल्स कैसे आएंगे आपके अंदर, अगर आपको नॉलेज है लेकिन इंटरव्यू में जाकर आप प्रेजेंट नहीं कर, आपको प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, आपका खुद का इंट्रोडक्शन देना नहीं आता, आप गड़बड़ा जाते हो वहाँ पे जाके, तो ये सब जो है ये आप यूनिवर्सिटी में सीख सकते हो कि कैसे आपका इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो, आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो ये सब जो है ये आप इंप्रूव कर सकते हो यूनिवर्सिटी में जाके। उसके लिए यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो, स्किल अप सेक्शन में जाके इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स में जाके आप देख लो। सेम एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप इंप्रूव कर सकते हो। तो ये कहाँ पे जाके इंप्रूव करोगे, स्किल अप सेक्शन में जाके कम्युनिकेशन स्किल्स में जाके आप इंप्रूव कर सकते हो। तो ये सब जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी कंपनी में प्लेस होना है, इंटरव्यू क्रैक करना है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर प्लस आपके पास वो स्किल्स भी होने चाहिए, तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की एक स्क्रीनशॉट डाला है। तो मतलब हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी दिखती है। अगर आप सब्सक्राइब कर दियो तो बाकी के कोर्सेज जो है वो भी आप सीख सकते हो। ठीक है, तो आप यूनिवर्सिटी में अगर इंटरेस्टेड हो, आपको जल्दी से जल्दी इंटरव्यू क्रैक करना है और किसी कंपनी में प्लेस होना है, तो इस दिए गए नंबर पे कॉल करो। प्लस आप अगर कॉल नहीं करना चाहते तो आप मेल आईडी पे भी मेल भी कर सकते हो। तो उसके प्लीज़ जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करो, लॉगिन करो और आपका करियर जो है वो जल्दी से जल्दी सेट करो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।